بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین و سامعین، قرآن مجید میں اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے ایک بڑی خوبصورت خوشخبری کا اعلان کیا، اور وہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے بندو، جب تمہیں کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی مصیبت ہو، کچھ چاہنا ہو، کچھ سے بچنا ہو، تو تمہارا واسطہ ایک ایسی ذات کے ساتھ ہے جس کو اونگ نہیں، نیند نہیں، ذوف نہیں، بڑھاپا نہیں، پریشانی نہیں، باپ کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، پر دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ تو مجھ سے مانگو۔ اللہ سے مانگنے کے عمل کو دعا کہتے ہیں، اور دعا کو حدیث میں کہا کہ سلاح المومن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ نفس آدمی کے خلاف ہے، شیطان آدمی کے خلاف ہے، گرد و پیش کی سرکش قوتیں آدمی کے خلاف ہیں، تو ان تمام قوتوں کے حوالے سے جو سپورٹنگ چیز ہے وہ ہے کہ آدمی کے پاس دعا۔ دعا کے لیے قرآن مجید نے 6-7 انداز اختیار کیے ہیں آدمیوں کے اندر صفت دعا کو، ذوق دعا کو، عبادت دعا کو پیدا کرنے کے لیے۔ دعا دراصل عبدیت کا اظہار ہے۔ میں بندہ ہوں، مجھے مانگتا ہوں اچھا لگتا ہوں، وہ بے نیاز ہے، وہ دیتا ہوں اچھا لگتا ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان جو رابطے کا خوبصورت طریقہ، اس کا نام ایک دعا ہے۔ پہلا طریقہ قرآن نے یہ اختیار کیا ہے کہ اللہ نے خود امر دیا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے بڑے خوبصورت نام ہے، صفاتی نام، ذاتی نام بے شمار۔ اللہ کہتا ہے میرے ناموں کو بیچ میں رکھ کے مجھ سے مانگا کرو۔ پھر ایک اور جگہ آتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ جب پریشانیاں تمہیں دستک دیتی ہیں تو کس کو پکارتے ہو اور تمہاری فریادوں کو کون سنا کرتے ہیں؟ پھر ایک اور جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، انہیں کہو قریب۔ تو قریب کتنا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو شہرگ ہے اس سے بھی زیادہ قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارو میں پکار سنا کرتا ہوں۔ اور یہ واحد ذات اللہ کی ہے جس نے اپنے حوالے سے یہ کہا کہ جب بھی پکارو، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارو میں پکار سنا کرتا ہوں۔ تو قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اللہ نے تسلی دی ہے کہ مجھ سے پکارو میں خوش ہوتا ہوں۔ دنیا کے لوگ دوسری دفعہ مانگو تو طبیعت میں بوجھ آتا ہے، تیسری دفعہ مانگو تو بے نیازی آتی، چوتھی دفعہ مانگو تو لہجے ترش ہو جاتے ہیں، 5ویں دفعہ مانگو تو میل ملاقات کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، اور اس کو پھیلے ہوئے ہاتھ، مانگے ہوئے ہاتھ اچھے لگتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو اختیار کیا وہ یہ تھا کہ میرے علاوہ دعا کے قابل کوئی نہیں جس سے مانگا جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے جن سے مانگتے ہو ان سے پوچھو انہوں نے زمین کی کوئی چیز تخلیق کی یا آسمان کی اٹھان میں ان کا کوئی شرک ہے۔ دوسری جگہ آیا کہ میرے سے جن سے مانگتے ہو ان سے پوچھو تمہاری کوئی چیز ذاتی ہے، تمہارا وجود ذاتی ہے، صفات ذاتی ہیں، اختیار ذاتی ہیں، عبادت ذاتی ہے، زہد ذاتی ہے۔ تیسری جگہ فرمایا جن سے مانگتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں، عباد امثالکم، تمہاری طرح بندے ہیں۔ چوتھی جگہ فرمایا کہ جو میرے علاوہ جن سے مانگتے ہو وہ تمہاری فریادوں کو ایسے سنتے ہیں جیسے کنویں کی منڈیر پہ بیٹھا ہوا پیاسا آدمی صدیوں مانگتا رہے اور اس کی فریاد کبھی کنویں کی تہوں میں چھپا پانی نہیں سنتا اور نہ ترس کھا کر اوپر آیا کرتا۔ کائنات کے ہر مقام سے دعا مانگنے کا روک دیا اور سارے دعاؤں کے رخ اور سڑکیں اور پھاٹک اور موٹر ویز اور راستے اپنی ذات کی طرف کر دیے۔ مانگو جب مانگو۔ تیسرا پھر جو مقربین ہیں ان کی دعاؤں کو ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا۔ ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ نوح علیہ السلام رب انی مغلوب فانتصر۔ موسیٰ علیہ السلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زکریا علیہ السلام کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ زکریا علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان تمام انبیاء کی اللہ نے نمازوں کو اتنا نقل نہیں کیا، دعاؤں کو نقل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی کئی دعائیں ذکر کر دی، موسیٰ علیہ السلام کی کئی دعائیں،
फिर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को जिक्र किया, बदर के मौके पे, ओहद के मौके पे, हुनैन के मौके पे, तबूक के मौके पे, हिजरत के मौके पे, मक्का फतह के मौके पर। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अमल मसनून दुआएं हैं। नमाजें 5 वक्त हैं, लेकिन आप अंदाज़ा करें एक अमल से दूसरे अमल में जब मैं और आप ट्रांसफ़र होते हैं तो दुआ आगे हाथ बढ़ा के खड़ी होती है। कोई अमल ऐसा नहीं है जिसको शरीयत ने हर किस्म के रत्ब याबिस से, साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए उसके लिए वैक्सीनेशन के तौर पर दुआ का हिसार न दिया। बच्चा पैदा हो तो दुआ, आदमी मर जाए तो दुआ। फिर दुआ कितना महबूब अमल है, आप अंदाज़ा करें नमाज का आगाज़ दुआ से, नमाज का इख्तिताम दुआ पे। फिर हदीस में तो दुआ इबादत नहीं, दुआ मुख्ल इबादत, इबादत का भी निचोड़ निकाला जाए तो जो निचोड़ निकलेगा वो दुआ है। कुरान मजीद का आगाज़ दुआ, कुरान मजीद का इख्तिताम दुआ। इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम, ये सूरह फातिहा में इहदिना अस्सिरातल मुस्तकीम फातिहा। फिर आखिर पे जो 2 सूरतें मौज़ूदतन, कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। फिर कुल आऊज़ बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। नमाज का आखिर अव्वल आखिर, कुरान का अव्वल आखिर दुआओं के साथ। फिर सालिहीन की दुआओं का अल्लाह ने जिक्र किया। नजाशी जब ईमान लाया तो उसने एक दुआ मांगी थी, कुरान ने वो जिक्र कर दी। आसिया जब फिरौन के जुल्म तशद्दुद से तंग आई तो जो उसने दुआ मांगी अल्लाह ने वो दुआ जिक्र कर दी। मरियम सिद्दीक़ा पे जब इल्ज़ाम लगा जो उन्होंने दुआ मांगी अल्लाह ने जिक्र कर दी। असहाबे कहफ ने जब अपने गार के अंदर जो दुआ मांगी अल्लाह ने उसका जिक्र कर दी। सालिहीन जो दुआ मांगते हैं उनके जिक्र कर दिया। फिर मुकाम आराफ पे एक शख्स बैठे होंगे, इधर जन्नत है दाएं, बाएं तरफ दोज़ख है, उस वक्त जो दुआएं मांग रहे होंगे अल्लाह ने वो दुआएं जिक्र कर दी। फिर जन्नत में जाने के बाद अहले जन्नत जो दुआएं मांगेंगे वो जिक्र कर दी। फिर उम्मत को हर काम की दुआएं मसनून तरीके से अपने महबूब के ज़रिए पहुँचाएँ कि मेरे महबूब न ये मेरे मुकाम को जानते हैं, न अपने दुआ की अपनी हाजात को पेश करने का फ़न जानते हैं, न नफ़ा नुकसान की तफसील जानते हैं। लिहाजा ये नादानी में, गफलत में या कुरुखे होकर मांगेंगे तो कोई ना कोई गलत मांग लेंगे। लिहाजा मेरे महबूब इनको बेदारी से लेकर रात को सोने तक दुआओं का जामे माने चार्ट फराम करो। अब ये मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह का दुआओं का तरगीब देना, न मानने वालों से नाराज़ होना, न मांगने वालों से नाराज़ होना, गैरुल्लाह से हर किस्म की दुआ के न होने का यकीन पैदा करना, अम्बिया की सदियों कबल दुआओं को कुरान की ज़ीनत बनाना, अपने महबूब की दुआओं को कुरान में दर्ज करना, सालिहीन मुख्तलिफ उम्मतों के, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो जादूगरों से मुकाबला हुआ तो जादूगर जब मुकाबले में और ईमान लाए तो उस पर उन्होंने जो दुआ मांगी, अब हमारा उससे क्या रब्ता था। असहाबे कहफ किसी दूर गार के अंदर पड़े हैं, वो दुआ मांग रहे हैं, हमें दुआएं। तो बताया ये जाया गया कि अल्लाह कहते हैं ये दुआएं मुझे पसंद थी क्योंकि दुआओं में अबदियत आती है, दुआओं में तज़ल्लुल आता है, दुआओं में इनकसारी आती है, दुआओं में अब बंदगी आती है, दुआओं में बिछना आता है, दुआओं में पामाल होना आता है। दुआएं तकब्बुर की कातिल हैं। दुआएं बंदे और अल्लाह का फासला कम करती हैं, दुआओं सर पे रिदा कायम करती है, दुआ आने वाली आफतों को टालती है, दुआ रुकी हुई खैरों को जारी करती है, जारी शुदा खैरों को बंद करती है, आफियतों को आम करती है, आफतों को दूर करती है। दुआ बंदे का हथियार है, दुआ बंदे का सिला है, दुआ बंदे का जिक्र है, दुआ बंदे की इबादत है, दुआ बंदे का वजीफ़ा हयात है। नाज़रीन, इस वक्त जो हमारे ऊपर आफतें हैं और आफतें बढ़ती चली जा रही हैं, उसके और सबब में एक सबब यह है कि हमसे क़ुव्वत दुआ छीन ली गई। हज़रत उमर दुआ मांगते हुए कहा करते थे, अल्लाह कबूल न करना, करना तेरी मर्ज़ी, तौफ़ीक़ दुआ सलब न करना। मेरे हाथों को कशकोल बनाकर फ़ज़ा में बुलंद होते हुए अपने हुज़ूर हाथों को भी फैलाने का ये जो नेमत है इसको महरूम न करना। मैं कबूलियत दुआ का खासगार नहीं हूँ, तौफ़ीक़ दुआ ज़रूर कह देना। और ये हो नहीं सकता कि जिसको तौफ़ीक़ दुआ मिले उसको कबूलियत दुआ न मिले। तौफ़ीक़ दुआ तासीर दुआ को ले आती है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मसनून दुआओं से महरूम हो चुके हैं। मेरी गुजारिश है आप हज़रात से, सुबह से लेकर रात तक जो दुआएं आती हैं, ये दुआएं एक एक दुआ बड़ी मजबूत टेक्नोलॉजी है। हम तरक्की पजीर नहीं, हम तरक्की याफ्ता हैं अल्लाह के महबूब। फिर यह है कि दुआ काम के साथ होती है, जब आदमी काम के लिए तैयार होता है तब दुआ आती है। ये इस बात की निशानी है कि हाथ पे हाथ धर के माउस दुआएं मांगने का तस्वर इस्लाम में कोई नहीं।
गाड़ी पे बैठे तो दुआ पढ़ो, खाना खाओ तो दुआ पढ़ो, सफर पे चलो तो दुआ पढ़ो, दुकान खोलो तो दुआ पढ़ो। पता ये चला कि असबाब के बाद दुआएं होती हैं। तर्क असबाब के साथ दुआएं, ये इस्लाम का तस्वर नहीं है। इस्लाम कहता है काम करो और ये दुआ करो। पता चला। तो इसलिए मेरे नाज़रीन गुजारिश ये है कि इस वक्त दुआओं जैसी कीमती, पाकीज़ा, हसीन, हफ्त अकलीम बादशाह से कीमती चीज़ें हमने कूड़ियों के भाव फेंक दी। हमारे बच्चों को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट आते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हम सिखाते हैं, लेकिन उनको अल्लाह के महबूब की ज़ुबान अक़दस से निकली हुई अर्श को चीर जाने वाली मसनून दुआएं हमारे बच्चों से महरूम होगी। किसी दुनिया के समावी या गैर समावी दीन रखने वाली कौम के पास उसकी नबियों की दुआओं की सौगात सलामत नहीं है। ईसाइयों के पास ईसा की दुआएं कोई नहीं, जो ईसा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, बाकी उनके तर्जुमे खानाजाद हैं। हमारे पास मिन व अन मौजूद हैं। अल्लाह मुहद्दिसीन को, मुफस्सिरीन को, अहले इल्म को जज़ाए खैर दे। उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर दुआओं की सौगात हम तक पहुँचाई। दुआएं बड़ा मजबूत किला हैं, हर किस्म की आफतों से बचाती हैं। और जिसने आफतों से रोकना है वही कह रहा है कि आफतों से रोकने के लिए मेरे महबूब की ये दुआ पढ़ो। अब खुद सोचो, जिसने खैर के ऑर्डर जारी करने हैं वही कह रहा है कि ये करो, मैं खैर के ऑर्डर जारी कर दूंगा। तो दुआएं शिर्क की भी कातिल हैं, दुआएं तकब्बुर की भी कातिल हैं, दुआएं आफतों की भी कातिल हैं, दुआएं परेशानियों की भी कातिल हैं, दुआएं बीमारियों की भी कातिल हैं, दुआएं कर्ज़ों की भी कातिल हैं। और दुआएं अबदियत लाती हैं, दुआएं खुशू लाती हैं, दुआएं बंदगी लाती हैं, दुआएं झुकना लाती हैं, दुआएं तौहीद लाती हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए मुराकबा करें। क्या मकसद? आज कितनी दुआओं का मौका मुझे मिला था और उसमें से मैंने कितनी पढ़ी और कितनी रह गई। जो रह गई हैं इस्तग़फ़ार के साथ उन दुआओं को एक दफ़ा दोहरा लें और एक हफ्ता ये आप और हम मशक करें। एक हफ्ते के बाद देखना छोड़ने वाली दुआओं का रिज़ल्ट कम होता चला जाएगा और धीरे धीरे हम मसनून दुआओं के मजबूत अहनी किले में आ जाएंगे। और ये इतना मजबूत किला है नाज़रीन, मत पूछो। पहली सदी का सारा हुस्न और सारी खैरें और सारी बरकतें उसके दीगर असबाब में एक जानदार सबब यह था कि हर शख्स अल्लाह के महबूब की दुआओं को ज़िंदगी बना के चल रहा था, वजीफ़ा हयात बना चुका था। हम मुतकब्बिर मिजाज लोग हैं, बेनियाज लोग हैं, न्याजमंद रहे नहीं और आफतों के आगे दुआओं का बंद नहीं बांधते, असबाब में चले रहते हैं। असबाब का गैर ज़रूरी इस्तेमाल शिर्क की तारीक वादी की तरफ धकेल देते हैं और दुआओं का इस्तेमाल शिर्क की वादी से निकाल कर तौहीद पे ले जाता है। चूँकि दुआएं तर्क असबाब का नहीं, असबाब को जानदार बनाने के नुस्खे कीमिया का नाम दुआ है। दुकान खोलो ये दुआ पढ़ो, असबाब पहले और दुआ बाद में। तो दुआ असबाब को ताकत देती है, तासीर देती है, कामयाबी देती है, कामरानी देती है और दुआ असबाब के अंदर से परेशानियों को निकाल देती है। तो इस वक्त एक लंबी शौरी काविश के तहत गैर मुस्लिमों ने हमसे ये मजबूत टेक्नोलॉजी छीन ली है। नतीजा ये है कि हम बैरून की दुआएं और बैरून का असले और बैरून के असबाब और बैरून के थैंकटिक्स फ़ौरन लेके आ रहे होते हैं और अपने तो खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। मांगते फिरते हैं गैरों से मट्टी के चराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने। दुआओं के बाद मसाइल का हल होना यकीनी है, कतई है, पक्की बात है। और असबाब के बाद मसाइल का हल होना न यकीनी है, न कतई है, न पक्की बात है। तो हम असबाब के साथ असबाब को यकीनी और पुरतासीर बनाने के लिए नाज़रीन दुआओं का इस्तेमाल करें। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।